السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ بلغ الرسالہ وادى الامانہ ونصح الامہ وترکہا علی البیضاء لیلہا کنہارہا لا یزیغ عنہا الا ہالک صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ معزز ناظرین و مشاہدین و مشاہدات، رمضان کی بہت ساری خصوصیات ہیں، انہی میں سے خصوصیت زکوٰۃ الفطر کی ادائیگی ہے کہ رمضان کے آخری دنوں میں ہر مسلمان، چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، آزاد ہو یا غلام، امیر ہو یا غریب، ہر ایک پر زکوٰۃ الفطر کو واجب کر دیا گیا ہے۔ زکوٰۃ الفطر عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی عید کی نماز کے بعد ادا کرے گا تو عام صدقہ ہوگا، زکوٰۃ الفطر کا حکم ادا نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ الفطر ایک شعار ہے، ظاہری شعار، جیسے قربانی شعار ہے، عید کی نماز پڑھنا شعار ہے، ایسے ہی زکوٰۃ الفطر ایک ظاہری شعار ہے۔ اور زکوٰۃ الفطر کے اندر غلہ دینا یہی ہمارے نبی کی سنت ہے اور یہی صحابہ کا، سلف صالحین کا عمل ہے۔ بہت ساری حدیثیں ہیں صحیح بخاری مسلم کی، سنن کی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ ایک سا زکوٰۃ الفطر میں ادا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سا فرض قرار دیا ہے، اور اس وقت جو خوراک تھی، جو غلہ تھا، صحابہ کرام اسی میں سے ادا کیا کرتے تھے۔ کھجور، کشمش، پنیر، اس طرح کے کچھ الفاظ آتے ہیں، اور حدیث کے اندر طعام کا لفظ ہے، اور طعام کا لفظ کے معنی ہوتے ہیں غلہ اور خوراک کے۔ آدمی جس ملک میں رہتا ہے، جس شہر میں رہتا ہے، جس علاقے میں رہتا ہے، وہاں جو خوراک ہے عام طور پر جسے لوگ کھانے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اس میں سے انسان زکوٰۃ الفطر ایک سا ادا کرے گا۔ گیہوں میں آدھا سا بھی ادا کر سکتے ہیں، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ صحابہ کرام دیا کرتے تھے۔ اگرچہ یہ چیز عام نہیں تھی لیکن پھر بھی دیا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 مد یعنی آدھا سا گیہوں میں سے دیا کرتے تھے۔ اور اس طرح کی بہت ساری حدیثیں ہیں جو ساری حدیثیں مل کر کے حسن یا صحیح لغیر ہی کے درجے تک پہنچتی ہیں، اسی لیے علماء نے اس طرح کی حدیثوں کو تقویت پہنچائی ہے۔ تو بہرحال زکوٰۃ الفطر کے اندر انسان کے لیے یہی ہے کہ وہ غلہ دے گا۔ آدمی جس علاقے اور ملک میں رہتا ہے وہاں کے لحاظ سے غلہ دے گا، اور غلہ دینا ہی ضروری ہے۔ غلے کے علاوہ کوئی چیز دینا انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔ جیسے قربانی ہوتی ہے، قربانی میں انسان جانور ذبح کرتا ہے، ایک شعار ہے۔ انسان جانور ذبح کرنے کے بجائے اگر وہ انسان پیسہ دے دے، چاہے لاکھوں اور کروڑوں کی شکل میں، تو ایسی صورت میں اسے صدقہ کا اجر عام تو مل سکتا ہے لیکن قربانی ادا نہیں ہوگی۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے غلے میں زکوٰۃ کو واجب قرار دیا ہے۔ غلے کا نصاب ہے، فصل پیدا ہوتی ہے، اس میں انسان غلہ نکالتا ہے۔ غلے کے علاوہ اور اس کا جو نصاب ہے وہ تقریباً 7.5 کنٹل ہوتا ہے، اور اس میں انسان زکوٰۃ دیتا ہے غلے کی شکل میں۔ اب انسان غلے کی شکل میں زکوٰۃ دینے کی بجائے اگر انسان پیسہ نکال دے، روپیہ نکال دے، سونا چاندی نکال دے غلے کے بدلے، تو ایسی صورت میں وہ جائز نہیں ہوگا، وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ایسے آپ دیکھیں جانور پہ بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ جانور میں زکوٰۃ کا نصاب ہے، یہ تفصیل کا موقع نہیں ہے، لیکن جانور میں جس پر زکوٰۃ فرض ہو، وہ جانور کے بجائے اگر وہ پیسہ نکالے، سونا چاندی نکالے یا غلہ نکالے، وہ ادا نہیں ہوگا، اس کو جانور ہی دینا پڑے گا۔ ایسی زکوٰۃ الفطر ایک ظاہری شعار ہے، لہذا زکوٰۃ الفطر کے اندر انسان کو غلہ ہی نکالنا اس کے لیے ضروری ہے۔ غلے کے علاوہ اگر وہ نقد نکالتا ہے، روپیہ اور پیسہ نکالتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ چیز ادا نہیں ہوگی، یہ جائز نہیں ہوگا۔ جو حدیثیں ہیں طعام کا لفظ ہے، اور باقاعدہ سا کا ذکر آتا ہے، یہ ناپنے والی چیز ہے۔ اس کا وزن 2.5 کلو بتایا جاتا ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ناپنے والی چیز ہے یہ، اور اس میں اگر وزنی چیز رکھیں گے وزن زیادہ ہو جائے گا، ہلکی چیز رکھیں گے تو ہلکا اس کا وزن کم ہو جائے گا۔ عام طور پر ایک متوسط قد کے انسان کے جو ہتھیلی ہوتی ہے، 4 لب جو ہے 1 سا ہو جاتا ہے۔ اگر 2 لب نکالیں گے تو اس صورت میں جو ہے آدھا سا ہوگا۔ تو
ज़कात उल फितर के अंदर गल्ला ही निकालना, यही हमारे नबी की हदीस है और यही असल है, और इसके अलावा कोई और चीज़ इंसान के लिए जायज़ नहीं है। इंसान पर अगर सोने चांदी की ज़कात होती है तो इंसान उसको जानवर की शक्ल में नहीं निकाल सकता। उसको सोना चांदी या जो उसके एवज़ बदले में है या उसके हुक्म में है, उसको इंसान निकाल सकता है। जैसे उसके हुक्म में क्या है, पैसा है, क्योंकि हर पैसे के असर ये तो सोना या चांदी है, इंसान उसको निकालेगा। लेकिन उसके बदले इंसान जानवर नहीं निकाल सकता है। इसलिए इंसान अगर ज़कात देता है सोने और चांदी की या पैसे की, और उस पैसे को देने के बजाय अगर इंसान किसी को गल्ला दे देता तो उस गल्ला अदा नहीं होगा, क्योंकि इंसान पैसा देगा उसे, और इंसान वो जो ज़कात लेता है वो उससे चाहे गल्ला खरीदे, चाहे उससे अपने इलाज पर खर्च करे, चाहे कपड़ा खरीदे या लाइट का बिल जमा कर दे, जो भी उसकी ज़रूरत है उसके लिहाज से वो खर्च कर सकता है। लेकिन हम पैसा देने के बजाय अगर पैसे में ज़कात होती है हम गल्ला दे दें, हमारे लिए क़तन जायज़ नहीं है। हमें उसको पैसा देना है जो ज़कात का मुस्तहिक़ है। अब वो जहाँ चाहे अपनी मर्जी के मुताबिक, ज़रूरत के मुताबिक उसको इस्तेमाल करे। हाँ, अगर आपने उसे पैसा दे दिया, वो आपको कहता कि भाई मुझे गल्ला ला करके खरीद करके दे दो, आप गल्ला खरीद करके दे सकते हैं। या कोई ऐसा शख्स है जो ज़कात का मुस्तहिक़ है, लेकिन अगर आप उसे पैसे दे देंगे तो गालिब गुमान ये है कि गलत जगहों पर खर्च कर लेगा, या जो उसके आलो औलाद हैं उन पर खर्च नहीं करेगा और गलत जगहों पर खर्च कर लेगा। तो एक मजबूरी की सूरत में महदूद दायरे में इंसान कर सकता है। या मान लीजिए औरतें हैं और इस तरीके से वो बाहर नहीं निकल सकती हैं, या सब मजबूर लोग हैं, वो बाहर ला करके गल्ला नहीं खरीद सकते हैं, तो आप उसकी जगह पर उनसे कह करके गल्ला ला करके खरीद करके उनको दे दीजिए, कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन अगर आम तौर पर आप गल्ला के बजाय, ज़कात में पैसे के बजाय अगर पैसे की ज़कात है और आप गल्ला दे देते हैं, राशन तकसीम कर देते हैं, ये क़तन आपके लिए जायज़ नहीं होगा, हराम है ये, और ये ज़कातुल फित्र, ये ज़कात की अदायगी नहीं होगी। इन तमाम चीज़ों से बात समझ में आती है कि जो चीज़ शरीयत ने फ़र्ज़ की है उसी को इंसान को निकालना है, उसके अलावा कोई और चीज़ निकालना इंसान के लिए जायज़ नहीं। कुछ लोग नकदी ज़कात निकालते हैं और उसके अपनी अक्ल के घोड़े दौड़ाते हैं और उसके ताल्लुक से बहुत सारे शुबहात पेश करते हैं। उनका एक शुबहा तो ये रहता है कि भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये इतनी छोटी करेंसी नहीं थी कि आप ज़कातुल फित्र पैसे में कहने का हुक्म देते, यानी इतनी छोटी करेंसी नहीं थी। तो उसका जवाब ये मेरे भाइयों कि आप रुबे दीनार कर सकते थे एक आदमी के ऊपर, रुबे दीनार या रुबे दिरहम कर सकते थे आप एक आदमी के ऊपर। रुबे दिरहम भी था, रुबे दीनार भी चलता था उस जमाने में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर फरमाया कि अगर कोई आदमी हैज की हालत में अपनी बीवी से हमबिस्तरी करता है तो 1 दीनार दे या आधा दीनार दे। अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं कि अगर कोई आदमी शुरू में या जब हैज आ रहा हो उस वक्त अपनी बीवी के पास जाता है तो उसको 1 दीनार देना है, और जब हैज ख़त्म होने का वक्त आ जाए उस सूरत में अगर जाता है तो उसको आधा दीनार पड़ेगा, आधा दीनार दे। और ये मौक़ूफ़न उनसे साबित है और अबू दाऊद की हदीस है। तो आपने आधा दीनार कहा तो आप रुबे दीनार भी कर सकते थे, आधा और रुबे दिरहम भी कर सकते थे, चांदी का रुबे यानी चौथाई हिस्सा आप कर सकते थे। लेकिन आपने गल्ला देने का हुक्म दिया, जबकि आपके ज़माने में पैसा था। और फिर मान ले थोड़ी देर के लिए कि पैसा उस वक्त इतना नहीं था, यानी छोटी करेंसियाँ नहीं थी, या यानी ये जो गल्ला 2.5 किलो मिलता है वो शायद 10 या 1 पैसे या 1 हल्ले दीनार के अंदर मिल जाता। तो मेरे भाई ये भी तो कर्ज किया जा सकता था कि पूरे घर वालों के ऊपर कर दिया जाता। जैसे कुर्बानी है, कुर्बानी पूरे घर वालों के ऊपर है। एक घर में चाहे 2 अफराद हों, चाहे 40-50 अफराद हों, एक घर की तरफ से कुर्बानी काफ़ी होती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के ऊपर ज़कातुल फित्र कर देते, हर फर्द के बजाय घर के ऊपर कर देते। लेकिन आपने घर के ऊपर नहीं किया, बल्कि आपने हर फर्द के ऊपर करार दिया। और वो भी गल्ला, आपके ज़माने में पैसा था, दीनार दिरहम थे, लेकिन आपने दीनार दिरहम निकालने का हुक्म नहीं दिया। इसलिए अकली घोड़े दौड़ाने के बजाय हमको चाहिए कि हमारे नबी ने जो अमल किया, सहाबा ने अमल किया, सलफ सालेह ने किया, इंसान उसके ऊपर अमल कर ले। एक बात तो ये हो गई। और आप ईसाइये से भी देखें कि लोग कहते हैं कि भाई
जो 2.5 किलो मिलता था उसके मुताबिक कोई करेंसी नहीं थी छोटी। तो मेरे भाई देखिए, ये जो सारी चीज़ें होती हैं उसमें तवाज़ुन का बरकरार रखना ये ज़रूरी नहीं है, और शरीयत ने इसका लिहाज नहीं किया है। मैं कुछ मिसालें आपके सामने देता हूँ, उन मिसालों को अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। जैसे कुछ लोग ये शुबह पेश करते हैं, इसलिए मैं उस शुबह का इजारा कर रहा हूँ कि देखिए, कसम का इंसान जो कफ़ारा देता है, इंसान कसम खाए और कसम तोड़ दे तो उसका कफ़ारा क्या कफ़ारा है? उसका कफ़ारा ये है कि वो क्या नाम है 10 मिस्कीनों को खाना खिलाए या 10 मिस्कीनों को कपड़ा पहनाए। अब आप देखिए, क्या 10 मिस्कीन को खाना खिलाना और 10 मिस्कीन को कपड़ा पहनाना क्या दोनों बराबर हैं? जाहिर बात है कपड़े में पैसा इंसान का ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपने ये भी कहा कि या तो इंसान 10 मिस्कीन को खाना खिला दे, एक टाइम का खाना, या तो उनको कपड़े पहना दे। कपड़ा ज़्यादा महंगा या खाना ज़्यादा महंगा है? नंबर 2 आप देखिए, आपने कहा या तो गर्दन आज़ाद करे, गर्दन एक गुलाम आज़ाद करना। अब आप बताइए कि 10 मिस्कीन को खाना खिलाने के बराबर क्या गर्दन आज़ाद करना है? क्या 10 मिस्कीन को जो कपड़ा दिया जाता है क्या उसके बराबर गर्दन आज़ाद करना है? यानी क्या एक गुलाम की कीमत उतनी ही थी अल्लाह के रसूल के ज़माने में जो 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना में जो लगता था, या 10 मिस्कीनों को कपड़ा देने में लगता था? क्या उतनी ही अल्लाह के रसूल के ज़माने में गुलाम की कीमत थी? यकीनन गुलाम की कीमत बहुत ज़्यादा थी, हज़ारों हज़ार दीनार थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हज़ारों हज़ार दीनार थे एक गुलाम आज़ाद करने में, लेकिन फिर भी आपने उनको बराबर रखा। या 10 मिस्कीन को खाना खिला दे आप, या 10 मिस्कीन को कपड़ा पहना दे, या एक गर्दन आज़ाद कर दे, और जो इसकी ताकत ना रखे आपने उसको 3 दिन का रोज़ा रखने का हुक्म दिया है। तो आप देखें क्या इसमें तवाज़ुन है? लोग कहते हैं कि भाई करेंसी नहीं थी उतनी छोटी इसलिए आपने ऐसा कह दिया। भाई क्या रुकावट थी? आप पूरे घर वालों पर कर देते, रुपए दीनार कर देते, 5 हल्ला आप कह देते, सब मिला करके किया जाता, दिया जाता। क्या किस चीज़ की रुकावट थी? तो शरीय दौर था, वही नाजिल हो रही थी, वही नाजिल हो रही थी। लिहाजा ये अकल से नहीं सोचा जाएगा कि हम अपनी अकल से सोचें और लिहाजा उसके मुताबिक जो चाहे हम जायज़ कर दें। ये चीज़ हराम है ऐसा करना। ऐसे आप देखिए, ज़हर आदमी अगर अपनी बीवी से कह दे कि तेरी पीठ मेरी माँ की पीठ जैसी है, तो उसके ऊपर क्या होता है? कफ़ारा होता है। या तो गर्दन आज़ाद करे, अगर इसकी ताकत नहीं है तो 2 माह का जो है लगातार वो रोज़ा रखे, अगर इसकी भी ताकत नहीं तो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए। अब आप देखें यहाँ पर 60 मिस्कीन के मुकाबले में गर्दन आज़ाद करना है। इससे पहले क्या था? 10 मिस्कीनों को खाना खिलाने की बात थी कसम के कफ़ारे में, और 10 मिस्कीन को कपड़ा पहनाने की बात थी, या गर्दन आज़ाद करने की बात थी। यहाँ पर देखिए, गर्दन आज़ाद इंसान नहीं कर सकता है, 2 माह लगातार रोज़े रखेगा। अगर ये भी नहीं रख सकता है तो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाएगा। क्या दोनों के अंदर, तीनों के अंदर कोई तवाज़ुन है? वहाँ पर अल्लाह के रसूल ने क्या हुक्म दिया? 3 दिन का रोज़ा रखने का हुक्म दिया, जबकि वहाँ भी गर्दन आज़ाद करने का हुक्म है। और यहाँ पर 60 मिस्कीन का 60 दिन का रोज़ा है और 60 मिस्कीन के खाना खिलाने की बात कही जा रही है। तो क्या इन सब के अंदर तवाज़ुन है? क्या इन सब के अंदर बराबरी है? आज जो अक्ल से बात करते हैं और अक्ल के घोड़े दौड़ाते हैं, क्या गौर कीजिए, क्या इनके अंदर कोई तवाज़ुन है? ऐसे अगर कोई आदमी जो है खता गलती में किसी को कत्ल कर देता है, गलती में कत्ल हो जाता है, तो गर्दन आज़ाद करने का हुक्म दिया गया है जो उस पर कफ़ारा है। और जो इसकी, और अगर क्या नाम है गर्दन, और क्या नाम है 2 महीने लगातार रोज़ा भी रखना है उसके लिए, गर्दन आज़ाद करना। एक इंसान को उससे गलती से एक इंसान कत्ल हो गया तो उसका कफ़ारा क्या है कि एक गर्दन आज़ाद करना। ये दियत की बात नहीं हो रही, ये कफ़ारे की बात हो रही। गर्दन आज़ाद करना और 2 महीने लगातार रोज़े रखना। तो आप देखें क्या तवाज़ुन है इन सब चीज़ों के अंदर। ऐसे ही इंसान इहराम की हालत में अगर किसी ममनू चीज़ का इर्तिकाब कर लेता है, इहराम की हालत में जो चीज़ें मना हैं अगर उसका इर्तिकाब कर ले, जैसे खुशबू लगा ले जानबूझ करके और बगैर किसी ज़ोर ज़बरदस्ती के, या नाखून काट ले, बाल काट ले, सिले हुए कपड़े पहन ले मर्द के लिए, तो शरीयत ने क्या हुक्म दिया है? बकरी ज़बह करने का हुक्म दिया है, या 6 मिस्कीनों को खाना खिलाने का हुक्म दिया है। अब सवाल ये है कि क्या एक बकरी 6 मिस्कीन के खाने के बराबर मिल जाएगी? 6 मिस्कीन के एक वक्त का खाना खिलाना में कितना पैसा खर्च होगा? और 6 मिस्कीन को खाना खिलाने में आप 1 किलो गोश्त में भी खिला सकते हैं, लेकिन बकरी कम से कम उसका वजन 10 किलो तो होगा ही, 8 किलो तो कम से कम होगा। आप 1 किलो गोश्त में 6 मिस्कीनों को आराम से खाना खिला सकते हैं।
2 किलो के अंदर खिला सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी की बात है ये। आप उसमें शोरबा ज़्यादा डाल दीजिए, और चीज़ें डाल दें, आप कम गोश्त के अंदर खिला सकते हैं। तो क्या इनके अंदर कोई तवाजुन है? आपने कहा बकरी या तो 6 मिस्किनों को खाना खिलाए, या इसकी भी अगर वो नहीं है तो 3 दिन का जो है वो रोज़ा रखे। क्या तवाजुन है इनके अंदर? क्या बराबरी है इसके अंदर? मेरे भाई, ये शरीयत है, अल्लाह ताला का हुक्म है, नबी का हुक्म है। अल्लाह ने जो चार फर्ज करार दिया उसको अपनी अकल से मत सोचिए। आप अकल सोचेंगे तो बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें अकल नहीं मानती है, नहीं कहती, क्या करेंगे उसको? तो ये कहना कि भाई ये क्या नाम है, उसके अंदर ये चीज़ें होती थी और छोटी करेंसी नहीं थी इसलिए हमारे नबी ने गल्ला निकालने का हुक्म दे दिया, मेरे भाई ऐसी बात नहीं है। ये दीन है, ये शरीयत है, और यही नबी ने अदा किया है, सहाबा ने, इसलिए हमको भी यही अदा करना। ये भी लोग कहते हैं कि गल्ला उस ज़माने में कीमत के तौर पर इस्तेमाल होता था, चलें हम उनकी बात मान लेते हैं। तो आज भी बहुत सारी चीज़ें कीमत के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। लोग लोहा दे करके सामान खरीदते हैं, प्लास्टिक दे करके लोग सामान खरीदते हैं, जूते और चप्पल दे करके कीमत के तौर पर उसे लोग सामान खरीदते हैं। तो क्या कहेंगे, जूता चप्पल भी निकालना जायज़ हो जाएगा ज़कातुल फित्र के अंदर, लोहा लक्कड़ भी निकालना जायज़ हो जाएगा ज़कातुल फित्र के अंदर। हैं, पुराने कपड़े लोग दे देते हैं, उसके बदले लोग पैसे लेते हैं, या उसके बदले लोग खाने पीने की कोई सामान ले लेते हैं। गांव देहात के अंदर भी, शहरों में भी आप देखिए लोग इकट्ठा करते हैं, लोहा लक्कड़ जाकर के उसको बेच करके पैसा ले लेते हैं, कीमत के तौर पर उसको इस्तेमाल करते हैं, उसको दे करके कोई दूसरा सामान ले लेते हैं। गांव देहात के अंदर आज भी लोग आते हैं बाकायदा बर्तन बेचने के लिए। लोग क्या करते हैं, उनके पास जो पुराने सामान जूते चप्पल वगैरह होते हैं, बर्तन ले लेते हैं उसके बदले, या खाने पीने की कोई चीज़ होती है, मिठाइयाँ होती हैं, और कोई चीज़ आइसक्रीम होती है, वो लोग क्या करते हैं, लोहा लेंगे, लक्कड़ लेंगे, प्लास्टिक लेंगे, जूता चप्पल लेंगे, उससे आपको आइसक्रीम दे देंगे, कीमत के तौर पर उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या ये सारी चीज़ें निकालना हमारे लिए जायज़ हो जाएगी ज़कातुल फित्र के अंदर? अल्लाह ताला का खौफ खाएं, ये दीन है मेरे भाइयों। लिहाजा दीन के अंदर कमी बेशी करना, उदल बदल करना, ये कतन हमारे लिए जायज़ नहीं है। लिहाजा इन तमाम बातों का जो खुलासा है वो यही है कि मेरे भाई, ज़कातुल फित्र के अंदर गल्ला ही निकाला जाएगा, गल्ला के अलावा कोई चीज़ और निकालना जायज़ नहीं। जो खुराक हो, आप जहाँ रहते हैं वो खुराक आप अदा कीजिए, वो आपका अदा हो जाएगा। ईद की नमाज से पहले अदा करना है, उसको पैसे दे देना ये आपके लिए जायज़ नहीं है। हाँ, ऐसा आप कर सकते हैं कि आप किसी को वकील बना दें, किसी को जानशीन बना दें, आप उसको पैसे दे दें और कहें भाई इस पैसे से गल्ला खरीद करके आप दे दीजिए। अब अगर आपका पैसा बच जाता है तो आप ऐसी सूरत में वो पैसा भी गरीबों को दे दीजिए। आप चाहे कपड़ा खरीद करके दे दें या और कोई चीज़ दे दिया, पैसा ही उनको आप दे दें, कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपने गल्ला दे दिया, गल्ला आपने अदा कर दिया, हो गया अदा वो। और जो बच गया उसे भी आप दे दें गरीब को, क्योंकि उसकी और भी ज़रूरत होती है। लिहाजा गल्ला मेरे भाइयों यही देना हमारे नबी की सुन्नत है। कहते हैं कि आज के ज़माने में पैसे ज़्यादा अहमियत जो है गल्ले की है, गल्ले से ज़्यादा अहमियत पैसे की है। भाई हर ज़माने में पैसे की ज़्यादा अहमियत थी, पहली बात तो ये, हर ज़माने में। नंबर 2, ऐसा भी वक्त आता है कि इंसान के लिए गल्ला ज़्यादा अहम हो जाता है। आप देखें, जंग हो रही है, कर्फ्यू लगा दिया गया है, इंसान पैसा घर में नहीं रखता है, इंसान सामान खरीद करके ला करके घर के अंदर रखता है। आप देखें कोरोना के टाइम में आपको पैसे लोग देते, आप लोग पैसे नहीं लेते थे, लोग कहते थे बिला करके हमें गल्ला दे दो, लोगों को गल्ला दिया गया। तो गल्ले की भी अहमियत है, आप इनकार नहीं कर सकते गल्ले की अहमियत का। लिहाजा इंसान के लिए ज़रूरत है कि गल्ला भी उसके घर में होना चाहिए। इंसान पैसा नहीं खाता, इंसान गल्ला खाता है। चावल दाल और गेहूँ ये सारी चीज़ें इंसान खाता है, इंसान पैसे नहीं खाता है। कर्फ्यू लग गया है, जंग चल रही है और आपके घर में पैसा रखा हुआ है लेकिन गल्ला नहीं है, पैसा आप पका करके नहीं खा सकते, लेकिन गल्ला है, आप उसके खाएंगे और आपकी ज़िंदगी बाकी बची रहेगी। पैसा अगर आपके पास है तो आपकी ज़िंदगी नहीं बाकी रहेगी, अगर आपके घर के अंदर गल्ला नहीं है तो मेरे भाई गल्ले की अहमियत हमेशा से और रहेगी, क़यामत तक रहेगी। पैसे की भी अहमियत है, सबकी अपनी अपनी जगहों पर अहमियत होती है। लिहाजा हमारे नबी ने ज़कातुल फित्र में गल्ला दिया है, पैसा और दीनार दिरहम होने के बावजूद भी, और उसके बावजूद भी आपने वही दिया। लिहाजा अगर ये चीज़ जायज़ होती तो एक साबित कर दे अल्लाह के रसूल के ज़माने में किसी सहाबी से कि उन्होंने गल्ला के बजाय कोई और चीज़ दिया हो, आप साबित कर दें। नहीं है, इसका कोई सबूत नहीं मिलता है। और ये सहाबा वही दिया करते थे, गल्ला दिया करते थे, लिहाजा गल्ला ही दिया जाएगा। गल्ले के अलावा कोई चीज़ और देना ये अदा नहीं होगा। यही कौल इसके अंदर सही है और इसी पर अमल किया जाएगा। और बाकी जो पैसे वगैरह के बारे में जो लोग बातें करते हैं उनकी बातें
نصوص سے، شریعت سے، فقہ سے، فہم سے دور ہیں، سلف صالحین کے منہج سے دور ہیں، لہذا ان کی باتوں پر عمل نہیں کیا جائے گا، اور اس طریقے سے اسی پر عمل کیا جائے گا جو اللہ کے رسول کی سنت سے اور سلف صالحین سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی کی سنتوں پر قائم رکھے، اور اللہ رب العالمین ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔